Which one? Leona? Yeah. Uh, uh, okay. Bismillah Rahman Rahim. We are going to start our second class as we have taken first one physical. So this is our second class, but again I am going to start it from the beginning. So you people have to know what we have studied in that class. Also, we have to record this class as well. Some of the students are here. They are sitting with me in office, and some of the students are online. Although some are not there, they are present online, not they are here. But still, we have to go on and start our first class. So welcome you all, and if you have any question or query, you can text me in your group. Also, you can text there, but as you have a multimedia screen on your screen, so probably I'll not be able to see your comments or hands within the message, or that you need to ask the question in the chat group, or just text me through WhatsApp. I think all of you have my number. So you can text me, and you can ask me any question, or you can ask Tahir Halil is sitting here, so he can assist me as well. You can ask your question there as well. Our course is dialectic and optical properties, and you people have studied material science. So, what is material science? I already talked in my first lecture on material science that what is a material science, what do you mean by a material scientist, what is the work of a material engineer, and what we have to study in this course. Actually, study of physics is the study of material, in other words. Physics means that the study of material. Whenever you are studying properties of material, you are studying physics. Now we call it material science because in this, what we do, we have to study the structure or the synthesis of new material. And that's why we call it material science. The job of a material scientist is to develop a mechanism for the structure of materials. Similarly, the work of a material engineer is to use the formalism and design a proper use of those materials or to give a workable shape to the already or to the providable materials by the material scientist. So that is the main thing now. I'm not going into that detail again, but I'll start now from some basic reviews or concepts which are required to study this course further. I think I have shared the books with you people. If I don't, then let me know. I'll share them again. The main book we are following is
Yeah, that one, the last one book. Solid state phenomena in solids. That is a good book for it. Also, we have some other recommended books. So I'll share with you people all the books I have for it. But mainly all the lectures are prepared from this book, so you have to study this one. Yeah, Dialectric Phenomena in Solids, and that is by Quan Chi Kao. It's a Chinese, I think, or Japanese professor emeritus of Electrical and Computer Engineering, University of Manitoba. So he is somewhere in Europe, I think. But it is a very good book, so you have to study it. Okay, coming to basic reviews or concept. What is semiconductor and dielectric or insulator? You all people know it. How we divide these materials. The main thing is energy band gap. If with different band gaps, you can characterize these materials. For example, what is semiconductor? Anyone? Oh, you people are here. Semiconductor. क्या मतलब है semiconductor का? Yeah, the material which are in between conductors and insulator. But can you tell me in terms of energy band gap? If you people remember in semiconductor, you will have studied conduction band or valence band and forbidden band. So whenever the conduction band is there, yeah, the valence band is full. Then what we call it? Yeah, yeah. So in conductors, we have free electrons. So it means that the electrons are there in the valence band or in the conduction band. So that's called the conductors. And insulators, there are no electron in the valence band. Semiconductor are in between them, and they have both the properties. For example, at room temperature, they are insulators, and when you increase the temperature, they become semiconductors or conductors. The electron in the outermost shell of atom, bound to the atom or molecules, coupled with the pre-charges, interact with external forces, such as electric fields, magnetic fields, electromagnetic waves, mechanical stress, or temperature, resulting in the occurrence of all dielectric phenomena. That is the main thing now. मैंने पिछले क्लास में भी बताया था आप लोगों को कि अगर आप देख ले तो मटेरियल की फॉर्मेशन को हम देख लेते हैं तो उसकी बुनियाद होती है वो एटम्स है, क्योंकि एटम्स ही वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है बेसिक. एटम के अंदर हम नहीं जाते क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन है न्यूक्लियस से या न्यूट्रॉन प्रोटॉन से वो अभी तक हम नहीं कंसिडर करते. जितने भी डायलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फिनोमेना है उसमें हम जो कंसिडर करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर करते हैं. अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में है. सो हम स्टार्ट लेते हैं एटम से, फिर एटम जब मिलते हैं मॉलिक्यूल बनाते हैं तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जिस तरह मॉलिक्यूलर स्टेट्स बनाते हैं. फिर इसी तरह मॉलिक्यूल्स बन के कंपाउंड्स बनाते हैं और मुख्तलिफ सॉलिड स्टेट मटेरियल बनते हैं जिसमें अपने बैंड्स बनते हैं. यानी जब ये ओवरलैपिंग करते हैं ये डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स in the becoming of a molecule, when two or more than two atoms combine, they combine their states. जो outermost states होते हैं वो उनके combine हो जा रहे हैं. इसी तरह फिर जब अगर हम solid state material की बात करें तो उसमें मुख्तलिफ एटम्स के या मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स जो होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं और फिर वो उन मटेरियल के स्टेट्स कहलाते हैं. आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन उसी में होते हैं. सो बेसिक पे जब हम जाते हैं वापस तो ये वो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है तमाम तर प्रॉपर्टीज के लिए. फॉर एग्जांपल अगर आउटर मोस्ट शेल्स के इलेक्ट्रॉन, आई थिंक समवन इज जॉइनिंग फ्रॉम द, दिस इज अ डिस्टर्बिंग फॉर अस, क्योंकि आप लोग ऑफिशियल ईमेल से ज्वाइन कर ले तो फिर हमें प्रॉब्लम नहीं होगी. It is the main problem now. Yeah, someone wants to join. Noman Khan. अच्छा, इसका मसला हल कर दे जल्दी.
क्योंकि ये फिर हमें प्रॉब्लम होती है ना। सही है। ओके, सो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है तमाम प्रॉपर्टीज के लिए। फॉर एग्जांपल, यही इलेक्ट्रॉन है, अगर एटम में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए, मीन इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन, सो द एटम बिकम्स चार्ज। इसी तरह अगर ये इलेक्ट्रॉन चला जाए तो फिर भी ये चार्ज बन जाता है, लेकिन दोनों का नेचर डिफरेंट होता है। सो मेन थिंग इज द इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर आप पीरियोडिक टेबल को देख लें तो ग्रुप वन एलिमेंट में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में, वो बॉन्डिंग में क्या करता है, वो आयनिक बॉन्ड्स बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर लेता है इजीली एज कंपेयर टू ग्रुप टू, देन एज कंपेयर टू ग्रुप थ्री एंड ग्रुप फोर एंड सो ऑन। सो यानी आयनिक बॉन्ड्स जो बनते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन लेना या देना, तो ग्रुप सेवन एलिमेंट्स और ग्रुप वन एलिमेंट्स ये आयनिक बॉन्ड आसानी से बनाते हैं, क्योंकि ग्रुप सेवन एक्सेप्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन को, उसमें टेंडेंसी ज्यादा होती है, जबकि ग्रुप वन जो है वो इंपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी उसमें देने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। सो दैट इज द मेन थिंग कि जो इलेक्ट्रॉन दे देता है तो वो आयन बन जाता है। अब जब ये आयन है तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिकली अनस्टेबल है, यानी अगर ये पॉजिटिव आयन है, अगर ये नेगेटिव आयन है, तो अब इसके इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई है, और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाए, या अगर न्यूट्रल पार्टिकल भी आ जाए, तो ये क्या करता है, इट इन्फ्लुएंसेस इट, यानी ये उस पे अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड इन्फ्लुएंस करेगा। व्हाट विल बी दैट इन्फ्लुएंस? द इन्फ्लुएंस विल बी दैट अगर ये न्यूट्रल पार्टिकल है तो ये उसको पोलराइज कर देगा, डाइपोल बना देगा। अगर ये कोई चार्ज पार्टिकल है तो ये उसको या तो अट्रैक्ट करेगा और या रिपेल करेगा ड्यू टू कोलम्बिक फोर्स। सो वही बात है कि दैट इज द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल हु इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल दिस फिनोमेना। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या है, बाउंड टू द एटम्स और मॉलिक्यूल्स, कपल्ड विद द प्री चार्जेस, यानी जो कि प्री चार्जेस है, इंटरैक्ट विद एक्सटर्नल फोर्सेस। और कौन कौन से फोर्सेस के साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैकेनिकल स्ट्रेस और टेम्परेचर। अगर आप उनको टेम्परेचर भी दे दे तो जब सबसे पहले वही इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे। इसी तरह रिजल्टिंग इन द अकरेंस ऑफ ऑल डाइलेक्ट्रिक फिनोमेना, और दैट इज द मेन रीजन। तो हमें ये पता चला कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक फिनोमेना स्टडी करते हैं तो उसकी मेन काज क्या है? द मेन काज इज द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, वो कंट्रीब्यूट करते हैं इसको। और नॉन मैग्नेटिक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, नॉन मैग्नेटिक है लेकिन डाइलेक्ट्रिक है। द डाइलेक्ट्रिक फिनोमेना इंक्लूड मेनली इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, रेजोनेंस, relaxation, energy storage, energy dissipation, thermal, mechanical and optical effects and their interrelations, and electrical aging and destructive breakdown। ये तमाम वो प्रॉपर्टीज है जो डाइलेक्ट्रिक फिनोमेना में है, और ये कौन से के लिए है? जो नॉन मैग्नेटिक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। हमारे पास दो किस्म के होंगे, एक वो होंगे जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी उनकी होंगी, वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की हम बात कर रहे हैं, लेकिन उनके फिर दो टाइप्स होंगे, एक मैग्नेटिक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और एक नॉन मैग्नेटिक। तो जो नॉन मैग्नेटिक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स है वो उसमें क्या है, वो डाइलेक्ट्रिक फिनोमेना काज करेंगे। उसमें कौन कौन से फिनोमेना होंगे? मेनली इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, यानी उनमें इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होंगे। हम मैग्नेटिक पोलराइजेशन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि दो दीज मटेरियल्स आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, तो उसमें तो मैग्नेटिक पोलराइजेशन हो ही नहीं सकती। द ओनली पोलराइजेशन पॉसिबल विल बी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। और रेजोनेंस इज आल्सो देयर, रेजोनेंस, इलेक्ट्रिक रेजोनेंस। व्हाट, ये जो टर्म्स आ रहे हैं ये क्या है, ये आगे हम सीखेंगे। ये हमारे मेन डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज है जो कि हम सीखेंगे, और यही से हम प्रॉपर्टीज, यानी यही प्रॉपर्टीज हम मेजर करते हैं मटेरियल्स के लिए। रिलैक्सेशन उसमें कितनी है, एनर्जी स्टोरेज उसकी कैपेसिटी कितनी है, एनर्जी डिसिपेशन वो कितनी करती है, थर्मल, मैकेनिकल या ऑप्टिकल इफेक्ट्स उनके क्या है, थर्मल इंटर रिलेशंस उसके क्या है, एंड इलेक्ट्रिकल एजिंग। इलेक्ट्रिकल एजिंग से क्या मुराद है कि वो उसकी इलेक्ट्रिकल लाइफ जो है वो कम जब हो रही है उसको हम इलेक्ट्रिकल एजिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी
इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है आपके पास, तो वक्त के साथ साथ उसकी एफिशिएंसी में कमी आती है। तो ये जो कमी का रेट होता है ना, ये इलेक्ट्रिकल एजिंग में शुमार होता है। एंड डिस्ट्रक्टिव ब्रेकडाउन जो होता है डिस्ट्रक्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अक्सर इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस में देखते हैं, जब कभी वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ जाता है तो वो एक प्लस कर लेता है और वो इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रक्टिव या इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो जाती है। तो ये इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन को सस्टेनेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप दे देते हैं कि ये फॉर एग्जांपल अगर हम ये स्टोरेज डिवाइस की बात करें मल्टी लेयर सेरामिक कैपेसिटर की, तो उसके लिए एक यानी मुख्तलिफ टाइप से, अगर मैं एक टाइप की बात कर लूँ तो गिवन होता है कि इसकी वर्किंग टेम्परेचर क्या है, फ्रॉम रूम टेम्परेचर या फ्रॉम 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर उसी को आप इस्तेमाल करेंगे एसी एरिया में जहाँ पे बर्फ पड़ती है या टेम्परेचर 15 से बिलो होता है, तो वो खराब हो जाएगा और वो काम नहीं करेगा। इसी तरह अगर उस पे ज्यादा हीट यानी ये हीट अप हो जाते हैं, तो अगर 100 से हीट बढ़ जाएगी तो तब भी वो खराब हो जाएगा। इसी तरह उसकी वोल्टेज रेंज गिवन होती है कि आप कोई भी डिवाइस उठा के देख ले, अपने अडाप्टर्स देख ले, उस पर लिखा होता है कि द वोल्टेज रेंज इज फ्रॉम 200 टू 240, उसमें काम करता है। अगर 240 से बढ़ जाएगा तो वो जो है ब्रेकडाउन होगा। सो दीज आर द मेन प्रॉपर्टीज जो कि रिक्वायर्ड होते हैं हमारे पास मटेरियल्स में, या इन्हीं प्रॉपर्टीज हमें चाहिए होती है मुख्तलिफ पर्पज के लिए। सो एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव will induce polarization in dielectric material and magnetization in magnetic material। अब देखें, हमने ऊपर जो बात की, जो फिनोमेना थे आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन की वजह से पैदा हो रहे थे, या आउटर मोस्ट शेल जो है वो इंटरेक्शन कर रही थी, उसमें एक हमने बात की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब इंटरेक्ट करेगी तो वो दो फिनोमेना काज करेगी, एक पोलराइजेशन और एक मैग्नेटाइजेशन। अगर आपके पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स है लेकिन नॉन मैग्नेटिक है तो उसमें पोलराइजेशन कास्ट करेगी, और अगर मैग्नेटिक मटेरियल्स है तो उनमें मैग्नेटाइजेशन कास्ट करेगी। आजकल हमारे पास ऐसे मटेरियल भी आते हैं जिसको हम बोथ कहते हैं, यानी दे आर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, यानी दोनों प्रॉपर्टी। जिस तरह हमारे पास है पेराइड्स जो है Fe2O3, ये पेराइड्स जो है ये हमारे पास क्या करता है, इट कैन डू बोथ। ये मैग्नेटिक मटेरियल भी है और ये इलेक्ट्रिक मटेरियल भी है। तो लोग इसको एक अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल इसको कहा जाता है, यानी इनको लोग स्टडी करते हैं और आजकल इसकी डिमांड जो है वो बढ़ रही है कि हम मतलब उन्हीं मटेरियल पे फोकस करें कि वो एक ही वक्त पे मैग्नेटाइजेशन और पोलराइजेशन दोनों काज कर सकती है। लेकिन ये बात जब हम कर रहे हैं, उन्हीं जो हमने ऊपर प्रॉपर्टीज बताए हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, दैट इज व्हेन इट कम्स टू इंटरेक्शन विद द इलेक्ट्रिक मटेरियल इट causes polarization, and when it comes to an interaction with the magnetic material it causes magnetization. So these are important terms you should know. Both the polarization and the magnetization also produce their own fields. अब जाहिरी बात है ये एक और चीज इसमें आ गई। अब आपने देखें, जब आपने किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की किसी मटेरियल पे, न्यूट्रल मटेरियल था, अब उसमें पोलराइजेशन हो जाएगी उसकी वजह से। वो फिनोमेना ऑलरेडी आप जानते हैं कि जब मैं राइट साइड पे फॉर एग्जांपल पॉजिटिव प्लेट है और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव प्लेट है, तो जो इसके करीब मॉलिक्यूल होंगे उसके नेगेटिव चार्जेस जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे, और जो वो जो नेगेटिव होंगे वो ऑपोजिट जाएंगे। यानी यहाँ से पोलराइजेशन शुरू हो जाएगी एंड इट गोज, जितना आपका फील्ड बढ़ता जाएगा ये पोलराइजेशन बढ़ती जाएगी। अब जब ये पोलराइजेशन यानी इस मटेरियल में जब पोलराइजेशन होगी तो उसमें हर डायपोल में एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है, जो कि हमें डायरेक्शन ऑफ द डायपोल भी बनाता है। यानी हमें वो डायरेक्शन ऑफ द डायपोल भी बनाता है ना, वो हम जैसे हम उसको ड्रा कर लेते हैं ना मुख्तलिफ डायपोल्स के। फॉर एग्जांपल अगर ग्रेन के अंदर है और ये इस तरफ है, इस तरह ये इस तरफ है, ये हम वही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसको शो करते हैं। अगर हम इसको बना लेते हैं ना इस तरह, यानी मुख्तलिफ मटेरियल्स का,
और वो इसी तरफ और इस तरफ, तो ये हमें डिफरेंट पोल्स बता देते हैं, यानी डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इट विल ऑलवेज बी अपोजिट होगी ना टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, नहीं देखिए, जब आपके साथ मटेरियल में क्या हो, मटेरियल की डायपोल बन गए हैं, वो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से बन गए हैं। अब जैसे ही कोई डायपोल बन गया तो उनके दरमियान अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाती है, और ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ना, ये सम अप होगी इसी मटेरियल में, it will be always opposite to the external electric field। अगर ये मैं अगर इस कभी मैग्नेटिक बता दो, इलेक्ट्रिक को पता होना चाहिए, मैग्नेटिक में यही फिनोमेना होती है, लेकिन यही फिनोमेना इलेक्ट्रिक मटेरियल में हो गया, लेकिन उसको पोलराइजेशन कहते हैं। So this also produces your own field which interact with the external field। लास्ट बात की वो इंटरैक्ट करेगी, रिजल्टिंग इन वास्ट स्कोप ऑफ डायरेक्ट एंड मैग्नेटिक फिनोमेना। अब इन दो फील्ड्स की इंटरेक्शन से बहुत से फिनोमेना पैदा होते हैं, जैसे डिसिपेशन है आपके पास। डिसिपेशन जो है ये उसका एक वो है प्रॉपर्टी है। ये थोड़ी सी अब हम हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। ये तो मैंने आपको मतलब समझा दिया डायलेक्ट्रिक का कि कहाँ पे डायलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फिनोमेना पैदा होंगे, उसकी मेन चीजें क्या होंगी। अब हम इसको तफसीलन, ये जो हमने नाम वहाँ पे लिखे थे मुख्तलिफ, ये हमारी बाकी जो जितने भी लेक्चर्स है, ये उनके एक इस पे एक लेक्चर शायद दो भी हो जाए किसी एक पे। ये हमारे टॉपिक है जो कि हमने सीखने हैं डिटेल में। लेकिन अभी चूंकि हम हमें चूंकि ईएमटी की जरूरत है डायलेक्ट्रिक फिनोमेना के लिए, आपको बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरीज जो है वो आपको समझ आनी चाहिए। तो थोड़ी सी ये रिव्यू मैंने लिखी हुई है, और इसमें थोड़ा सा मैं आप लोगों को अभी एक वो भी दूंगा असाइनमेंट इसके साथ, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए इस पे। आप लोग ऑलरेडी अपने अंडर ग्रेड के क्लासेस में भी ये पढ़ चुके हैं, और अभी आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर था एमएसआई या एमफिल का, उसमें भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पे एक कोर्स था। सो यू पीपल स्टडी दैट वेरी वेल। तो थोड़ा सा ये रिवीजन है आप लोगों ने करना है। सो Faraday in 1837 in England was the first to report that the capacitance of a condenser was dependent on the material inside the condenser। यानी he was the first person जिन्होंने डायलेक्ट्रिक मटेरियल को आइडेंटिफाई किया कि एक्चुअली ये कैपेसिटेंस जो है इस मटेरियल है जो इनसाइड पड़ा हुआ है। At that time he called the ratio of the capacitance of the condenser filled with the dielectric material to that of the same condenser empty inside in a free space। उस वक्त उन्होंने इसकी रेशो निकाली इन दोनों की, किसकी, हाउ मच द मटेरियल इज देयर एंड हाउ मच द फ्री स्पेस इज देयर। यानी अगर दो प्लेट्स है और उन दो प्लेट के दरमियान मटेरियल पड़ा है, तो उसमें खाली जगह कितनी है, और उसमें जो मटेरियल है, जितना जगह मटेरियल ने ऑक्यूपाई किया है वो कितना है, एंड उसकी रेशो उसने कैलकुलेट की, द स्पेसिफिक कंडक्टिव कैपेसिटी व्हिच इज नाउ कॉल्ड द परमिटिविटी, और उससे ही वही परमिटिविटी टर्म निकल आई। In 1873, following the discovery of Coulomb's law on forces between charges, Ohm's law on electrical conductivity, Faraday's law, and Ampere's law on magnetic and electric induction, Maxwell wielded these discoveries together to formulate a unified approach, and he was the main जिन्होंने इन सब को कंबाइन किया और उसको एक यूनिफाइड अप्रोच दिया। ठीक है। So today we have four equation. Maxwell four equations are del cross H equal to J plus del partial D by partial T, then del cross F equal to minus rate of magnetic flux है। Similarly del dot B is equal to 0 and then del dot D equal to rho। अब ये क्या है, where F D H and B, ये चार जो आपके पास टर्म है F D H and B, they are four vectors denoting respectively the electric field. F is the electric field, or you can say the force, the electric flux, density D, or electric displacement we called it, the magnetic flux, the magnetic field and the magnetic flux density, H and B, you know already it. J is also a vector denoting the electric current density. You can see in the first relation J is there,
and rho is a scalar quantity denoting a net charge density. So that is the net charge density. So these are the main equations for you need to derive this equation from these laws. This is your assignment. You have to derive these 4 Maxwell equations. आप लोगों ने इसकी डेरिवेशन करनी है, जो आप लोग अपने अंडरग्रेड की क्लासेस में कर चुके हैं उसको आपने रिपीट करना है, एंड दिस इज योर असाइनमेंट एंड देन यू हैव टू सबमिट इट टू मी. ओके, मैक्सवेल इक्वेशंस डिस्क्राइब. अब मैक्सवेल इक्वेशन क्या करता है? इट टेल्स अबाउट व्हाट द कपलिंग बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड. देखिए, ये हमें इन दो फील्ड्स की कपलिंग के बारे में बताता है. दैट इज द मेन वर्क एंड देयर इंटरेक्शन विद द. अब ये दो फील्ड्स के कपलिंग के बारे में भी बताता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कपल्ड है एक दूसरे के साथ. एंड वी नो दैट नाउ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आप देख लें, सो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ऑलवेज फॉलोइंग वन अनदर. वो करते हैं ना, परपेंडिकुलरली तकरीबन वो अपने आप को फॉलो करते हैं. सो दैट इज द कपलिंग. सिमिलरली विद द इंटरेक्शन विद द मटेरियल. अब जब ये दोनों फील्ड इंटरेक्ट करेंगे मटेरियल के साथ तो क्या होगा? रिजल्टिंग इन ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना. तमाम फिनोमेना पैदा होते हैं. सो द पैरामीटर B may be linked to पैरामीटर H so as G to F. ये जो लिंक्स है इनके दरमियान वो भी बाद में डेवलप हुआ है. B हमारे पास और H, ये दोनों आप जानते हैं, आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की इसी तरह D और F और J और F बाय द इक्वेशंस B equal to mu naught H. Mu naught is 4 pi to 10 power minus 7 Henry per meter. Or it is also 1.257 into 10 power minus 6 Henry per meter. इसी तरह D equal to epsilon F. Epsilon आप जानते हैं which is equal to epsilon R into epsilon naught, and epsilon naught is here the permittivity of free space, and you know the value. The value of it is has been derived by Farad. इसी तरह J equal to sigma F. Sigma is the free space density, or you can say the surface charge density, whatever the name you want to give it. फिर ये दोनों epsilon naught और mu naught भी एक दूसरे के साथ related है by a relation that is C equal to mu naught epsilon naught into power जो है उसका वो है -1/2. or in other words you can write it 1 divided by under the root mu naught epsilon naught. और C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है ना, तो यहाँ से आप स्पीड ऑफ लाइट निकाल सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने म्यू नॉट कैलकुलेट किया, एप्सिलॉन नॉट कैलकुलेट किया, इफ यू हैव द वैल्यूज ऑफ इट आपके पास है, दोनों कांस्टेंट है, आप वो दोनों पुट कर ले, यू कैन फाइंड द वैल्यू. लुक एट द वैल्यू इन फ्री स्पेस. अगर आपके पास फ्री स्पेस की बात होती है तो फिर J जो है वो तो 0 होगी, क्योंकि करंट डेंसिटी नहीं होगी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी भी 0 होगी. Where mu, epsilon and sigma are respectively the permeability, permittivity and the conductivity of the material. अब देखें, ये तीन चीजें हैं जो हमें मेन चीजें देती है. अगर हम परमिएबिलिटी कैलकुलेट कर ले, परमिटिविटी और कंडक्टिविटी, तो ये हमें तमाम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बता देते हैं. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ये हमें तमाम बता देते हैं. वी कैन गेट ऑल द प्रॉपर्टीज फ्रॉम इट, क्योंकि ये रिलेटेड है इनके साथ. Microscopic theory may deduce the physical properties of a material from its atomic structure, which may be generally represented by these three parameters: mu, epsilon, and sigma. Microscopic theory जो हम बात करते हैं ना, माइक्रोस्कोपिक, आजकल हम लोग नैनो की भी बात करते हैं ना, नैनो स्ट्रक्चर्स की. तो माइक्रोस्कोपिक थ्योरी में डिड्यूस क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज, तमाम फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी? मटेरियल की. और ये कहां से आएगी? एटॉमिक स्ट्रक्चर से. रिमेंबर दैट व्हाई एटॉमिक स्ट्रक्चर? बिकॉज वी नो दैट द outermost shell electron or the valence electron in the outermost shells of the atoms are responsible. वही इसी इंटरेक्शन में रिस्पांसिबल है. सो इट इज कमिंग फ्रॉम देयर. ठीक है. The nature of these parameter is directly associated with the aggregate effect of the deformation of the atomic structure and the movement of electric charges caused by the electromagnetic field. देखें, the nature of these parameter, यानी जो ये parameters है जो हमें देते हैं, ये किसके साथ associated है? With the aggregate effect. aggregate effect का क्या मतलब है? क्योंकि कुछ चीजें इसको कम करेंगी और कुछ चीजें इसको बढ़ाएगी, तो इस वजह से हम एग्रीगेट इफेक्ट लेते हैं, यानी ओवरऑल इफेक्ट जिसको आप कह सकते हैं. समथिंग विल बी
गोइंग डाउन एंड समथिंग विल बी गोइंग इंक्रीजिंग। और जब आप इन तमाम चीजों को सम अप करेंगे विक्टोरियली तो इससे एग्रीगेट रिजल्ट आता है ना। तो एग्रीगेट इफेक्ट होगा किसका, यानी ये एसोसिएटेड, ये पैरामीटर एसोसिएटेड है एग्रीगेट इफेक्ट का। किस चीज के इफेक्ट के साथ, डिफॉर्मेशन ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर, कि जब एटॉमिक स्ट्रक्चर में चेंजेस आएगी तो वो चेंजेस इनडायरेक्टली इन पैरामीटर्स को चेंज करेगी, इसको इफेक्ट करेगी। ये मैं कांस्टेंट वाली की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे हम म्यू, एप्सिलॉन और सिग्मा की बात कर रहे हैं। कांस्टेंट अलग है, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ठीक है ना। म्यू और ये कांस्टेंट नहीं है, ये आपको जहन में रखना है, क्योंकि इसमें ये डिपेंडेंट है मटेरियल्स पे। So they are associated with the deformation of the atomic structure and the movement of electric charges. अब देखो जब एटॉमिक स्ट्रक्चर में चेंजेस आएगी, लाजमी बात है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस की मूवमेंट होगी बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इस वजह से है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट की वजह से ये चेंजेस आ रही है, which is mainly due to magnetization, polarization and electrical conduction. ये तीन चीजें हैं, म्यू मैग्नेटाइजेशन के साथ है, एप्सिलॉन पोलराइजेशन के साथ है, सिग्मा इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के साथ है। सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको बताती है कितना कंडक्शन वहां पे मौजूद होगा। सो these three parameters directly associated with the changes in the atomic structure. जब एटॉमिक स्ट्रक्चर में चेंजेस आएगी और वो चेंजेस जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की इंटरेक्शन की वजह से आएगी, या कोई दूसरा तरीका जो होगा वो स्ट्रेस, या स्ट्रेस के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक, वो तो दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आ गए, लेकिन स्ट्रेस इज अनदर वे, उसकी वजह से भी आ सकती है, या टेम्परेचर चेंज की वजह से, कंडक्शन की वजह से भी आ सकती है, ठीक है। तो ये मेन चीजें हैं जो रिलेट कर लेती है। The beauty of the Maxwell's equations are that the beauty is that a vast scope of electromagnetic phenomena can be described with only a few variables. बहुत सी चीजें आप जान सकते हैं चंद वेरिएबल की वजह से। Usually we use the relative values of mu and epsilon, which are expressed as mu r equal to mu divided by mu naught, or you can write it mu is equal to mu naught into mu r. इसी तरह एप्सिलॉन can be written as epsilon naught into epsilon r. Mu r and epsilon r are called the relative permeability and the relative permittivity respectively. अब ये relative क्योंकि they are directly related with the material. वो हमने एप्सिलॉन फ्री स्पेस के लिए रख दिया, तो अब जब मटेरियल होगा तो उसके साथ r लगा लेते हैं। और जो म्यू और एप्सिलॉन है वो टोटल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, फ्री स्पेस का भी और दोनों का। So our simple dielectric constant, ये एप्सिलॉन r और म्यू r को हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी दोनों को नहीं, ये जो परमिटिविटी है इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। The parameter mu r and epsilon r and sigma generally characterize the electromagnetic properties of material. They are responsible for the characterization. Thus, information about the dependence of these parameters on some physical variables such as density, temperature, field intensity and frequency would shed much light on the internal structure of matter. अब चूंकि ये पैरामीटर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बता दिए, तो हमें अगर हम इंफॉर्मेशन ले लें अबाउट द डिपेंडेंस कि ये पैरामीटर किस चीज पे डिपेंड करते हैं, ऑन सम फिजिकल वेरिएबल, यानी अब देखें ये पैरामीटर फिर आगे डिपेंडेंट है सम फिजिकल वेरिएबल पे। कौन से फिजिकल वेरिएबल पे, डेंसिटी पे, कि डेंसिटी चेंज होगी ये पैरामीटर चेंज होंगे। फॉर एग्जांपल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डेंसर मटेरियल में हाई होता है एज कंपेयर टू द लो डेंसर मटेरियल। यानी अगर हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो, एक ही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है ना, लेकिन एक को हम डेंसिफाई कर लें और दूसरे को हम डेंसिफाई ना कर ले इतना ज्यादा, तो जो जितना ज्यादा डेंसिफाई होगा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा। टेम्परेचर पे, टेम्परेचर के साथ ये कम होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ये दूसरा बढ़ता है, ये उल्टा है उसके साथ। फील्ड इंटेंसिटी है E जो है वो इफेक्ट करता है, फ्रीक्वेंसी के साथ मेनली रिलेटेड है। सो दैट वुड शेड मच लाइट, यानी ये इंटरनल स्ट्रक्चर पे और ज्यादा वो करेगा, क्योंकि रेजोनेंस का आपने वहां पे पढ़ा था। सो फ्रीक्वेंसी इज देयर
फ्रीक्वेंसी जो है वो इनडायरेक्टली आकर इन प्रॉपर्टीज को चेंज करेंगी, और जब ये प्रॉपर्टीज चेंज होंगे तो आपके वो चीजें चेंज होंगी। इस वजह से जब हम एक्सपेरिमेंटली जब स्टडी करते हैं तो हम डायलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर या विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी स्टडी करते हैं कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे इसका रिस्पांस क्या होगा at constant temperature and then at constant frequency at different temperatures। तो अगर ये दोनों हम चेक कर ले और इसके रिलेशंस भी है हमारे पास, यस इसके रिलेशंस भी है हमारे पास, then we can find we can get more information from that। As Maxwell's equations governs both the electrical and the magnetic properties of matter, as well as all electromagnetic phenomena in any medium, it is important to understand the physics and the historical development behind these equations। So that is assignment number 1। It is important to understand what the physics and the historical development। तो ये आपको इस वजह से जरूरी है कि आपको इन दोनों का पता हो। चलो बस यहाँ तक काफी है, क्योंकि आगे फिर जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है डायलेक्ट्रिक फिनोमेनास की। तो आई एम नॉट गोइंग देयर नाउ बिकॉज इट्स आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस। आई थिंक मेरा आवाज जो है वो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं है वो ऑनलाइन है, उन सबको क्लियर सुनाई दे रही थी। सो दिस और इससे आज की क्लास से हमें ये तजुर्बा हो गया है। दिस वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस दैट वी did the same class as online as well as physical। आगे हम क्लासरूम में भी इसको मैनेज कर सकते हैं कि हम फिजिकल क्लास भी ले और उसको ऑनलाइन भी ले, एंड देन वी विल रिकॉर्ड इट, क्योंकि वहाँ पे हमें बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी सी। तो बोर्ड के लिए फिर ये यही कैमरा हमारा जो है वो इस्तेमाल होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से आप लोगों को मेरी तस्वीर भी साथ नज़र आ रही होगी। जब आपके साथ ये प्रेजेंटेशन नज़र आती है तो उसके साथ मेरी पिक्चर भी अगर कैमरा ऑन हो तो वो नज़र आती है तो नहीं आती, आप चेक करके मुझे बता सकते हैं। अच्छा, अब इसमें किसी के जो क्वेश्चंस हो सो प्लीज लेट मी नो। Any question from any student? अगर हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो मैंने कहा कि अगर न्यूट्रल पार्टिकल आ जाए, हाँ बिल्कुल डाइपोल उसको पोलराइज करेगा फील्ड में जब आता है ना। और अगर देखो ये असल में थोड़ा सा इसको समझे, जरूरी नहीं है कि हर न्यूट्रल पार्टिकल को डाइपोल बना दे, क्योंकि ये डिपेंड करता है उस पे भी ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है वो उसको डाइपोल बना सकता है कि नहीं बना सकता। फॉर एग्जांपल लकड़ी रख दिया आप उसके अंदर, ठीक है ना, इंसुलेटर है, तो लकड़ी को अगर आप रख लेंगे और आप फील्ड को बढ़ाते जाएंगे तो एक हद इतना फील्ड बढ़ जाएगा कि शायद वो जल जाए उसकी हीट की वजह से, लेकिन डाइपोल नहीं बनेगी। सो इट डिपेंड ऑन द मटेरियल एज वेल, कि अगर न्यूट्रल मटेरियल हो लेकिन यानी उसमें वो हासियत हो डाइपोल बनने की। यस, ये आगे हम सीखेंगे, ये जरूरी है उसके लिए। इस वजह से इधर बता दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि अगर हम हर न्यूट्रल पार्टिकल को ले आएंगे वो डाइपोल बनेगा। या ये दैट इज इंपॉर्टेंट, आपको इसके बैकग्राउंड का पता हो। बाकी जो है या ये है कि अगर न्यूट्रल हो तो वो डाइपोल बनेगा, लेकिन अगर आयन है या चार्ज पार्टिकल है तो वो तो फिर कूलम लॉ इज देयर, वही अप्लाई होगा तो उसके तरीके से इफेक्ट करेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन है फिर होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव है तो अट्रैक्शन होगी। मैं मैसेजेस भी चेक करता हूँ अगर किसी ने मैसेजेस किए हो, या किसी ने कुछ नहीं लिखा चैट में। ओके, यू कैन आस्क मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं, और या आप मुझे वो कर सकते हैं। इधर व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आया है जी, दिलाराम से मेरे ख्याल से आया है, मेरे ख्याल से
Sir, you have used word deformation which shows physical change. Does it mean that there is some physical change in dielectric due to applied field? Yes. In most cases, there is physical change. Not in 100%, but in most cases, yes. Physical change होगी. शेप चेंज होगी तब डाइपोल बनेगी. अगर शेप चेंज नहीं होगी तो डाइपोल नहीं बनेगी. हाँ. बस खबर है बस अब आपको 100% पॉसिबल नहीं होता, लेकिन चेंज होता है. देखिए ये आगे हम पढ़ लेंगे ना, जो पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज हम स्टडी करेंगे ना, उसमें हम सीख जाएंगे कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम अप्लाई कर ले तो स्ट्रेस काज कर लेती है ना, तो वो तो डिफॉर्मेशन होती है ना. या अगर स्ट्रेस हम अप्लाई कर ले तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंड्यूस करती है और उसकी वजह से पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज इंड्यूस हो जाते हैं. जी दिलारम, आई थिंक यू गॉट योर क्वेश्चन. Yes, okay, that's good. कोई और ऐसा है? अगर कोई और नहीं है तो फिर मैं जो लोग ऑनलाइन मौजूद थे उनकी अटेंडेंस लूंगा और जो यहाँ पे हैं वो ले लूंगा एंड देन आई विल ऑफ द क्लास. Nazia, if you people want me, then I can take it tomorrow as well. But I think according to timetable, my classes are on Wednesday and Thursday. But if you people are free, then let me know about the timing. I can manage to take it. It depends on you people. Just discuss in your group and then let me know. चलो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई ना? नहीं. जल्दमा तखीन स्टॉप शो ना रिकॉर्डिंग स्टॉप शो ना स्क्रीन चिकन ना वो शेयर में आखो में स्टॉप को करना रिकॉर्डिंग है रिकॉर्डिंग तो स्टॉप ओके थैंक यू. अभी इस पे डिस्कशन ना करें, कल मतलब कल सुबह तक मुझे बता दें. खैर आप ग्रुप में डिस्कस कर ले. थैंक यू.